Hello everyone, my name is Tushar Tuwar, Assistant Professor in Civil Engineering Department at Dr. Subhash Technical Campus, Junagadh. Welcome to my YouTube channel. Today I am going to take lecture of design of structure which offered in semester 5th in GTU. Today I am discuss analysis previous lecture analysis step and analysis of singly RC beam example 1 or 2. So again step analysis of singly RC beam. First steps section classification. सेक्शन क्लासिफिकेशन में 3 टाइप के क्लासिफिकेशन. फर्स्ट बैलेंस सेक्शन, XU is equal to XU max, MU is equal to MU limit. Second, under reinforced section, XU less than XU max, MU less than MU limit. Third, over reinforced section, XU greater than XU max, MU greater than MU limit. These are 3 conditions. Section classification. Step number 2, maximum compressive stress in concrete. Step number 3, maximum tensile stress in concrete. Step number 4, lever arm jack. Step number 5, total tension T. Step number 6, total compression C. And step number 7, moment resistance MU. First step, section classification. XU is equal to XU max, बैलेंस सेक्शन और लिमिटिंग सेक्शन भी उसको बोलते हैं. XU is equal to XU max, XU less than XU max under reinforced section उसे URS भी बोलते हैं. U short form RS. XU greater than XU max over reinforced section O R S. XU max जो है उसकी वैल्यू IS 456 पेज नंबर 70. ग्रेड ऑफ स्टील दे रखा होगा 250, 415, 500 और यहाँ पे XU max बाय डी की वैल्यू दे रखी होगी 0.48, 0.46 पॉइंट समथिंग लेते.
Step number 2, maximum compressive stress in concrete with 36 FCK characteristic strength of concrete मतलब ग्रेड ऑफ concrete M20 तो FCK की वैल्यू आ जाएगी 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर। Step third, maximum tensile stress in steel 0.87 Fy characteristic strength of steel grade of steel 250 415 500 550 grade of steel। lever arm Z is equal to D effective depth minus 0.42 XU total X। Step 5, total tension in steel और total compression C। तो ये दोनों फॉर्मूला हमें IS 456 पेज नंबर 96 क्लोज नंबर G11A पे मिल जाएगा। E is equal to 0.87 FYAST characteristic strength of steel area of steel। यहाँ पे characteristic strength of concrete width of beam neutral axis XU moment resistance IS 456 page number 96 using step number 1। जो स्टेप फर्स्ट में हमने देखा कि 3 केस है XU is equal to XU max XU less than XU और XU greater than XU max। 3 कंडीशन के हिसाब से हमें मोमेंट फाइंड करना रहता है। फॉर बैलेंस सेक्शन बैलेंस सेक्शन के लिए IS 456 पेज नंबर 96 क्लोज नंबर G11C ये फॉर्मूला दे रखा है mu लिमिट XU max by D ब्रैकेट में 1 minus 0.42 XU max by D B into D square into FCK। तो हमें वैल्यू mu लिमिट की फाइंड करनी है। XU max by D की वैल्यू हमें IS 456 पेज नंबर 70 पे मिल जाएगी। ए वैल्यू भी हमें IS 456 पेज नंबर 70 पे मिल जाएगी। B width of beam, D effective depth of beam, FCK characteristic strength of concrete तो mu लिमिट मिल जाएगा। फॉर अंडर एंड फॉर सेक्शन आया क्लासिफिकेशन हुआ है सेक्शन क्लासिफिकेशन में अंडर एंड फॉर सेक्शन QRS तो IS 456 पेज नंबर 96 पे क्लोज नंबर G11B का फॉर्मूला लेना है mu is equal to 0.87 Fy characteristic strength of concrete AST area of steel AMF स्टील दे रखा है तो वहां से कैलकुलेशन करना है, नहीं दे रखा है तो IS 456 पेज नंबर 96 क्लोज नंबर G11A का A में mu का फॉर्मूला वहां से हमें फाइंड आउट करना है AST। D इफेक्टिव डेप्थ ब्रैकेट 1 माइनस AST एरिया ऑफ स्टील Fy कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ स्टील B विड्थ ऑफ B D इफेक्टिव डेप्थ FCK कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। जब ओवर एंड फॉर सेक्शन दे रखा है वो RS तो IS 456 पेज नंबर IS 456 2000 पेज नंबर 96 क्लोज नंबर G11C बैलेंस सेक्शन के लिए और ओवर एंड फॉर सेक्शन के लिए दोनों के लिए mu लिमिट mu का फॉर्मूला सेम रहेगा। mu limit is equal to 0.36 XU max by D bracket 1 minus 0.42 XU max by D B into D square into FCK। अब हम स्टार्ट द सिंगली रेनफोर्स्ड बीम एनालिसिस एग्जांपल।
हमें एग्जांपल में गिवन डेटा में बोला है फॉर लिमिटिंग सेक्शन 200 mm by 300 mm इफेक्टिव डेप्थ। इफेक्टिव ये शब्द पे हमें खास ध्यान देना है। इफेक्टिव बोला है। डिटरमाइन द फॉलोइंग if it is the reinforced with an effective cover भी दे रखा है 50 mm। तो फाइंड हमें करना है मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेस इन कंक्रीट एंड मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस इन कंक्रीट सॉरी स्टील। लीवर आर्म जेड, टोटल टेंशन टोटल कंप्रेशन M20 और 250। तो गिवन डेटा फर्स्ट सबसे पहले हम गिवन डेटा का कलेक्शन करेंगे। जो भी हमने एग्जाम्पल में डेटा दे रखा है वो हम फर्स्ट कलेक्ट करेंगे। गिवन डेटा FCK जो ग्रेड ऑफ कंक्रीट दे रखा है उसे हम FCK बोलेंगे 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर। FY ग्रेड ऑफ स्टील 250 न्यूटन पर mm स्क्वायर। विड्थ ऑफ बीम 300 mm। डेप्थ ऑफ बीम width of beam B 200 mm, depth of beam effective depth 300 mm। हमें यहाँ पे इफेक्टिव डेप्थ बोला है तो इफेक्टिव डेप्थ डिस्टेंस कहाँ से कहाँ तक रहेगा, यहाँ से स्टील का सेंटर तक का जो डिस्टेंस है उसे हम इफेक्टिव डेप्थ बोलते हैं। और ये जो दे रखा है उसे हम कवर बोलते हैं E। और जो टोटल ओवरऑल हाइट है ओवरऑल डेप्थ उसे हम ओवरऑल डेप्थ बोलते हैं कैपिटल डी। इफेक्टिव डेप्थ को हम स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो स्टेप नंबर फर्स्ट सेक्शन क्लासिफिकेशन गिवन डेटा में हमें बोल ही दिया है। लिमिटिंग सेक्शन और बैलेंस सेक्शन दोनों सेम। ठीक है, तो स्टेप नंबर 1 सेक्शन क्लासिफिकेशन द गिवन सेक्शन लिमिटिंग सेक्शन और बैलेंस सेक्शन। तो XU इज इक्वल टू XU मैक्स IS 456 पेज नंबर 70। XU मैक्स की वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं। XU मैक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए जो स्टील का ग्रेड है वो हमें चाहिए। तो XU max is equal to 0.53 into D 0.53 into D 300। तो XU is equal to XU max 159 mm। जो हमें बैलेंस सेक्शन दे रखा है इसलिए हमने डायरेक्ट ले लिया है। XU max is equal to XU। Step number 2 maximum compression stress in concrete is equal to 0.36 FCK 0.36 into 20 7.2 Newton per mm square। Step number 3 maximum tensile stress in steel 0.87 FY 0.87 FY 250 217.50 Newton per mm square। Lever arm Z step number 4 D is equal to 0.42 XU 300 minus 0.42 into XU की वैल्यू जो हमें मिली है XU max is equal to XU max is equal to XU तो 159 mm। तो Z is equal to 233.22 mm। अब हमें फाइंड करना है टोटल टेंशन
उसे हम टी से रिप्रेजेंट करते हैं। टोटल टेंशन फाइंड करने के लिए 0.87 FY AST, तो हमारे पास 0.87 FY है। AST एरिया ऑफ स्टील नहीं दे रखा है हमें, कोई ऐसा नहीं बोला है कि वो डेटा में कि 3 नंबर 20 mm डायमीटर, तो हम AST फाइंड कर सकते थे, लेकिन अभी यहाँ पे हमने डेटा में कुछ दिया नहीं है, तो हमें फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। IS 456 पेज नंबर 96 क्लोज नंबर G11A, this formula XU is equal to 0.87 FY AST divided by 0.36 FCK into B. AST is equal to 0.36 FCK B into XU is equal to divided by 0.87 FY. So XU is equal to 159, 0.36, 20, 200, 0.87. AST is equal to 1052.6 mm. So T is equal to 0.87 FY AST 0.87 250 into 1052.6 is equal to 228.96 into 10 raised to 3 Newton. So 228.96 kilonewton total tension. Total compression C is equal to 136 FCKB into XU, 136 B to XU FCK 20, 200, 159, 228.96. So C is equal to 228.96 kilonewton. हमें फर्स्ट चेक करने के लिए जो बोला था फॉर लिमिटिंग सेक्शन, जितना टेंशन है उतना कंप्रेशन, तो लिमिटिंग सेक्शन हो गया। कंप्रेशन है उतना ही टेंशन है। बैलेंस बी 200 mm 300 mm width D B यहाँ तक ओवरऑल डेप्थ 350। यहाँ पे हम स्टील नहीं दे रखे हैं, मतलब हम यहाँ पे ऐसे दिखा देते हैं कि स्टील बीम सेक्शन हो गया। टॉप में कंप्रेशन रहेगा, बॉटम में टेंशन रहेगा, ठीक है। अब हम चेक करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, सिंगली आरसी बीम। एग्जांपल नंबर 2, फाइंड ऑफ मोमेंट रेजिस्टेंस, हमें MR फाइंड करना है। फाइंड ऑफ मोमेंट रेजिस्टेंस ऑफ सिंगली रेनफोर्स्ड कंक्रीट बीम 200 mm width and 410 mm इफेक्टिव। क्या दे रखा है? इफेक्टिव डेप्थ दे रखा है 410। रेनफोर्स विथ हमें AST भी दे रखा है कि 4 बार 12 mm डायमीटर of Fe 415 M20 grade of steel। तो फर्स्ट हम फाइंड करेंगे गिवन डेटा, FCK is equal to 20 Newton per mm square, Fy is equal to 415 Newton per mm square, grade of concrete, grade of steel, B width of beam, D इफेक्टिव डेप्थ बोला है। इफेक्टिव डेप्थ क्या? इफेक्टिव डेप्थ, तो इफेक्टिव डेप्थ का मतलब होगा स्मॉल d, और उसका डिस्टेंस कंप्रेशन से टॉप और बॉटम में रेनफोर्समेंट के सेंटर तक का जो डिस्टेंस है उसे हम बोलते हैं इफेक्टिव डेप्थ। टोटल डेप्थ
ओवरऑल डेप्थ हमने कवर एज्यूम कर लिया है 40 mm। तो इफेक्टिव डेप्थ प्लस कवर 410 प्लस 40 इज इक्वल टू 450। टोटल डेप्थ हो गया 450। और हमें एरिया ऑफ स्टील दे रखा है, एरिया ऑफ स्टील इज इक्वल टू 4 नंबर 12 mm डायमीटर। तो क्या करेंगे, एएसटी फाइंड करने के लिए 5/4 इंटू डी स्क्वायर 12 स्क्वायर एरिया मिल जाएगा, उसके मल्टीप्लाई 4 कर देंगे तो टोटल एरिया में मिल जाएगा एएसटी एरिया ऑफ स्टील 452 mm स्क्वायर। एरिया ऑफ स्टील मिल गया 450 mm स्क्वायर। स्टेप नंबर 1 सेक्शन क्लासिफिकेशन। तो सेक्शन क्लासिफिकेशन में एक्सयू और एक्सयू मैक्स दोनों फाइंड करना पड़ेगा। एक्सयू फाइंड करने के लिए हमें IS 456 पेज नंबर 96 पे क्लोज नंबर G11A पे जाके फॉर्मूला लिखना रहेगा। XU is equal to 0.87 FY AST divided by 0.36 FCK into D। 0.87 FY की वैल्यू दे रखी है 415, AST हमने फाइंड की है यहाँ पे 452.36 ग्रेड ऑफ कंक्रीट विड्थ ऑफ बीम। तो हमारे पास आ गया 113.32 mm एक्सयू की वैल्यू। अब हम एक्सयू मैक्स फाइंड करेंगे। एक्सयू मैक्स फाइंड करने के लिए IS 456 पेज नंबर 70 पे वैल्यू हमें मिलेगी, ग्रेड ऑफ कंक्रीट के हिसाब से वैल्यू हमें मिलेगी 0.48। एक्सयू मैक्स इज इक्वल टू 0.48 इंटू डी। 0.48 इंटू डी, डी की वैल्यू 410, तो एक्सयू मैक्स 196.8 mm। यहाँ पे हमारा सेक्शन एक्सयू लेस देन एक्सयू मैक्स, एक्सयू है वो हमारा छोटा है और एक्सयू मैक्स की वैल्यू बड़ी है। तो एक्सयू लेस देन एक्सयू मैक्स, तो अंडर रेनफोर्स सेक्शन XU is equal to XU max balance section। XU less than XU max under reinforced section। XU greater than XU max over reinforced section। Three types of section। First under reinforced section यहाँ पे हमें मिला। अब हमें स्टेप नंबर 2 फाइंड करने की जरूरत नहीं है। स्टेप नंबर 2 में टोटल कंप्रेशन स्ट्रेस, टोटल टेंशन स्ट्रेस हमें नहीं बोला है, लीवर आर्म भी फाइंड करने का नहीं बोला है, टोटल टेंशन नहीं बोला है, टोटल कंप्रेशन नहीं बोला, फाइनल बोला है मोमेंट रेजिस्टेंस फाइंड करने का है। मोमेंट रेजिस्टेंस फाइंड, डायरेक्ट हम मोमेंट रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे MU। तो फर्स्ट स्टेप में जो हमारा सेक्शन क्लासिफिकेशन हुआ है अंडर रेनफोर्स सेक्शन, अंडर रेनफोर्स सेक्शन के लिए IS 456 पेज नंबर 96 पे क्लोज नंबर G11B का फॉर्मूला है, हमें लेना है। तो MA is equal to 0.87 FY AST into D ब्रैकेट 1 माइनस AST into FY B D FCK। तो 0.87 जो अंडर रेनफोर्स सेक्शन रहता है तो हमें फॉर्मूला यही यूज करना है मोमेंट रेजिस्टेंस के लिए। 0.87 FY की वैल्यू है 415, AST 452, D 410, 1 माइनस AST 415, FY सॉरी AST 452, FY 415, B FCK के वैल्यू 20 ले रखा है, B 200 और D 410। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 59.26 into 10⁶ न्यूटन into mm। तो MU is equal to 59.26 किलो न्यूटन into मीटर। मोमेंट रेजिस्टेंस हो गया स्टेप नंबर 2।